عالمی بینک کا پاکستان کو 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $40 ارب دینے کا وعدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی بینک کی طرف سے $20 ارب کی یقین دہانی کا خیر مقدم۔ کہا عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک اہمیت کا حامل ہے۔ شراکت داری فریم ورک کے تحت 6 شعبوں پر توجہ مرکوز ہے۔ ان شعبوں میں معیاری تعلیم، بچوں کی غذائیت اور موسمیاتی تبدیلی شامل ہیں۔ کلین انرجی، جامع ترقی اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیون کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ دہشت گرد گروہ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بغیر بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا۔ خواجہ صاحب نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی 21ویں ترمیم کو ووٹ دے کر روئے بھی تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا رضا ربانی کو علم تھا کہ انہوں نے دراصل کیا کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں، دھماکہ کا خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ مخصوص ایجنڈا ہے۔ غلطی سب کرتے ہیں، سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ہماری پالیسی صرف پاکستان ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پشاور میں سیاسی قائدین سے گفتگو۔ کہا نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ فتنہ خارج کی ملک کے کسی علاقے میں عملداری نہیں ہے۔ افغانستان سے پاکستان ہمیشہ اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ اختلاف صرف فتنہ خارج کی موجودگی اور سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر ہے۔ افغانستان یہ مسئلہ جب تک حل نہیں کر لیتا اختلاف رہیں گے۔ Pakistan was never a technical ally of the United States. I mean, there was no treaty of alliance with Pakistan, but certainly over many years, for the last couple of decades. پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں شراکت دار ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کی بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی پر پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان سے اتحاد کا کبھی کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری رہی ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا۔ بیانات دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہماری کافی ہماری ڈیبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی۔ آپ نے یہ سب کہا تو آرمی چیف نے کیا ڈیمانڈ ہیں، اس میں 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے، تو یہ معاملات پھر وہاں ڈسکس کر لیں گے۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کر ہی دی، تو میں نے کہا جب بات اب کریں گے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، ظاہری بات ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ سخت گفتگو ہوئی تھی۔ آرمی چیف سے ملاقات میں سخت گفتگو کی ساری باتیں رکھی۔ میں نے 26 نومبر سے متعلق بات کرنا تھی۔ اسحاق ڈار میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے معاملہ اٹھایا تو میں نے تمام باتیں کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا پروگرام 11th آور میں انٹرویو۔ کہا گورنر کے پی نے وفاقی فنڈ سے متعلق غلط بیانی کی تو انہیں ٹوکا۔ وہ کہنے لگے مجھے گفتگو سے نہ روکے۔ میں نے کہا گورنر کے پی گفتگو کر لیں تو اجلاس میں شریک ہو جاؤں گا۔ رینجرز پر گاڑی چڑھانے والا مسلم لیگ نون کے اہم عہدیدار کا بھانجا ہے، لیکن اس کا مقدمہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ افغان حکام فتنہ خارج کو اپنی سرزمین پر ٹھکانے کیوں دے رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔
जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। कल मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत नेक नियति से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना लिए, अब वो सियासी कैदी हैं, रिहाई मिलनी चाहिए। इनको चाहिए कि ये हमारे साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तो हमारी बसात के मुताबिक हमारे साथ बात करें, मामले को आगे चलाएं, डेडलॉक की तरफ ना लेके जाएं। इनको मामलात को बेहतर अंदाज से आगे चलाना चाहिए, ऐसे ही जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी। मुज़ाकरात करने वाले हुकूमत की बसात के मुताबिक ही मुतालबे करें। पीटीआई जुडिशल कमीशन पर मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश करे। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा 9 मई के मास्टर माइंड का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। कोई शक नहीं, 9 मई बानी पीटीआई और क़यादत का सोचा समझा मंसूबा था। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। शिबली फराज ने कहा आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बलूचिस्तान के रिहेबिलिटेशन के लिए, वो आज तक शुरू ना हो सका। फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, आप हमें दे दें। अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक 8 से 9 महीने के अंदर अंदर अपने गरीब लोगों को ये घर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए दे सकते हैं। वफाक ने बलूचिस्तान की तामीर नौ के लिए जो मंसूबा शुरू किया वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मंसूबा हमें दे दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा हम 8 से 9 माह में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत घर बना सकते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदी फर्म मिनारा की जानिब से रेकोडेक में सरमायाकारी का इम्कान है। रियाज ने फ्यूचर मिनरल्स फोरम के मौके पर खबर रसा एजेंसी से गुफ्तगू में कहा 6 से 8 माह के दौरान मिनारा मिनरल्स रेकोडेक में सरमायाकारी कर सकती है। तलाशी वाला चलिए तो उनको कोई 4-5 लाख रुपए वहाँ से मिले हैं, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, बस कपड़े छपड़े छोड़े, बाकी सब लेके चले गए। वहीं से वो वापस गए। वहाँ पर एक लड़का नमाज पढ़कर आ रहा था जिनको उन्होंने हिट किया और उसको शूट किया। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। 5 डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। फजर की नमाज पढ़कर आने वाले नौजवान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने गोली मार दी। 17 साल का मुजफ्फर जाँ बहक हो गया। SHO जमान टाउन रिजवान कुरैशी और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग, पेशी पर आने वाला नौजवान कत्ल, एक शख्स जख्मी। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल दानियाल का गुजर खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। कभी कोई कचरा कुंडी में मिल रहा होता है, कभी किसी को डंपर कुचल के चले जाते हैं, कभी बच्चे लापता हो जाते हैं, कभी ढकने ना होने की वजह से बच्चे गटर में गिर जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है और कोई इस पर कान भी नहीं धर रहा है। इस केस में अगर किसी ने भी ये हरकत की है, बच्चे को यहाँ छोड़ जाए। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल के सारिम का कुछ पता न चल सका। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी मुतासरा फैमिली से मिलने उनके घर पहुंच गए। सारिम के वालिदैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। दो 2017 से लापता MQM के कारकुन यूसुफ की बाजियाबी की दरख्वास्त। तफ्तीशी अफसर ने सिंध हाई कोर्ट को बताया JIT ने शहरी को अस खुद गुमशुदा करार दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। भाई खुद कैसे गुमशुदा हो सकता है, 3 बच्चे हैं, खानदान को कैसे छोड़ सकता है।
जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, जिसका ताल्लुक MQM से हो क्या उसे गायब कर देंगे। अदालत का बाजियाबी से मुतालिक मौसर इक़दामात का हुक्म। CTD पंजाब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ शहरों से 23 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर से फितना खारिज के साथ दहशतगर्द पकड़े गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। लाहौर के अहम तालीमी इदारों के नक्शे भी मिले। मुल्क भर में सर्दी का जोर, बालाई इलाकों में बर्फीली हवाएं, शदीद सर्द मौसम ने अस्तोर और स्कर्दू का पारा -10, गिलगित और कलाम में -7 तक पहुंचा दिया। जियारत में दर्जा हरारत -6, कलात में -4 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सुबह धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के मुतादिद सेक्शन बंद रहे। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्किया की बंदरगाहों का दौरा। पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाज़ों के दरमियान बहरी मश्क का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। PNS यमामा का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और बहरी ताल्लुकात को फरोग देगा। इसराइल जहरियत से बाज न आया, गजा पर हमले जारी, मजीद 22 फलस्तीनियों की जान ले ली। सहूनी फौज ने स्कूल और मुतादिद घरों को निशाना बनाया। वस्ती गजा में 7, रफा में 4 और अलबरीज कैंप में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे इसराइली ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है गजा में जंगबंदी का मुआहदा होने के करीब है। हमास के फैसले का इंतजार है। अटलांटिक काउंसिल में ब्लिंकन की तकरीर के दौरान फलस्तीन की हिमायत में नारे, ब्लिंकन को जंगी मुजरिम और झूठा करार दे दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस भड़कते शोलों ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर झाड़ियों में आग भड़क उठी। चंद घंटों में 5 एकड़ रकबा जल गया। अब तक 25 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता हैं। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश करने वाले जनूबी कोरियन सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद योन सेक्यूल ने कहा वो खून खराबे से बचने के लिए तफ्तीशकारों से ताउन करेंगे। करप्शन इन्वेस्टिगेशन हुकाम का कहना है वारंट की तामील से रोकने वालों को भी हिरासत में लिया जाएगा। वजारत दाखिला और दिफा में करप्शन। कुवैत में साबिक वजीर शेख तलाल अल खालिद को 14 साल कैद और 1 करोड़ दिनार जुर्माने की सजा सुना दी गई। शेख तलाल अल खालिद वजारत दाखिला से कबल वजारत दिफा का कलमदान संभाले हुए थे। दोनों वजारतों में करप्शन पर कम मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हुकूमत की फिल्मों, ड्रामों और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग के लिए कोशिशें। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आर्टिस्टों की हौसला अफजाई का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास। शर्जील मेमन ने कहा नए फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की जाए, तख्लीकी कामों को फरोग दिया जाए। हवा का लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। हम ऐसे खाक नशी क्या लुभा सकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मीज़ाने ज़र में तोलता है। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से गुजरे 29 बरस बीत गए। नात हो या सलाम, गजल हो या नज़्म, मोहसिन नकवी के मुतादिद अशार आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उन्हें 1996 में आज ही के दिन कत्ल कर दिया गया था। और कराची में सिंध स्पेशल गेम्स का मेला सज गया। नेशनल कोचिंग सेंटर में रंगों से भरी इफ्तिताही तकरीब, खुसूसी बैंड ने कौमी तराने की धुन बजाई, दरवेशी रक्स भी किया।
3 रोजा इवेंट में 30 स्कूलों के एथलीट्स जौहर दिखाएंगे।